please make sure that, you know, one thing I want to tell you, that is, make sure you do all the classes, be it law or be it audit. Make sure you do all the classes, because all these things I'm doing to benefit the students who have taken admission and trusted me and as their faculty for law and audit. So I will do everything in my power to give them the very best in these two subjects and guide them overall, of course. And for that I am telling you, live classes ka koi, always I keep on saying, koi substitute nahi hai, and I'm living up to my words. I'm not giving DTH. I will give you live classes in audit also. So what's the plan, sir? This is today's date. We stand as on today, which is not 5th of August, but 8th of May. Okay, very special day also. Now 8th of May आज जो है, आज का तारीख में हम लोग कैसा सिचुएशन में खड़े हैं? मैं प्रेजेंट सिनारियो आप लोग को बोल दिया कि जितना भी क्लासेस ऑडिट में बचा हुआ है वो सारे अपने ऑनलाइन करेंगे, बट सिलेबस का क्या हाल है वो है पॉइंट नंबर 3. पॉइंट नंबर 3 इज अबाउट सिलेबस. आई विल टॉक अबाउट the syllabus first. That's why this is open. As you guys know, there are 13 chapters in audit. 13 chapters है. 13 chapters. 13 chapters में ये CA इंटर का सिलेबस है. पेपर 6 है ऑडिट, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस. ये जो 13 चैप्टर्स है, ये 13 चैप्टर्स में अपने चैप्टर 1 ऑलमोस्ट हो जाएगा. चैप्टर 1 जैसे ही होगा, on record complete. I won't do chapter 2 and 3 with you right now. The essays which I have given basically covers chapter 1, 2, 3. The essays which I have given basically covers chapter 1, 2, 3, 4, 5. So if I tell you chapter, I am taking count of the syllabus. थोड़ा syllabus समझा के मैं बात कर रहा हूँ. पेपर मैं सीए वालों का सिलेबस समझा के बात कर रहा हूँ, सीएमए वालों के लिए आऊंगा, डोंट वरी. पेपर 6 इज द नेम ऑफ द पेपर. नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस. कोई अगर बहुत ढंग से पढ़े ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा 50-60 आराम से उठ जाता है, कोई अगर ढंग से पढ़े, और ग्रुप 2 में ये बून बन जाता है कोई अगर ट्यूशन लेके अच्छे से रिजल्ट करे. ठीक है, जो आप लोग का बहुत चांसेस है, हाई चांसेस है. ठीक है, अच्छा करना. Paper 6 auditing and insurance में there are 13 chapters. Chapter 1 to 5. Chapter number 1 से लेके 5 तक सारा चीज कवर्ड हो चुका है. Everything is covered in essays, covered through essays. मैं एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ. जो लोग ऐसे वाला टॉपिक किए हो उन लोग के लिए आइडिया दे रहा हूँ. ऐसे वाला क्लासेस जो लोग किए हैं, खास करके उन लोग को पता होगा. हाँ, आई विल कम टू इट चैप्टर 7 एंड 8. सो ऐसे वाला लोग जो किया है उन लोग को पता है नेचर, ऑब्जेक्टिव, स्कोप ऑफ ऑडिट ऐसे 200, ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्रोग्राम ऐसे 300, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट एविडेंस सर ऐसे 210, 220 भी यहाँ पे कवर्ड होता है. हाँ, चैप्टर 1, 2 में ऐसे 210, 20 भी कवर होता है. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस is covered by ऐसे 230 and ऐसे 500. जो लोग किया है उन लोग को पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या लैंग्वेज बोल रहा हूँ. इट्स नॉट हिब्रू. once you do the essay classes you will find it very simple as any mother tongue. Okay, essay 240, essay 315, essay 330 is covering risk assessment and internal control majorly. Fraud responsibilities is getting covered. Fraud and responsibilities is getting covered through which fraud and responsibilities is getting covered through chapter 5 में जो दिया हुआ है essay 240. essay 240 का नाम मैं ऊपर ले लिया chapter 4 में, but chapter 4 का चीज नहीं है. अच्छा सर, ऑडिटिंग एंड ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट ये चैप्टर अलग है. तो चैप्टर 6 मैं सीरियली जा रहा हूँ इसलिए 7-8 का नाम नहीं लिया. जिन लोग को लग रहा है चैप्टर 7-8 भी ऐसे कवर्ड है, आई विल कम टू दैट, डोंट वरी. ओके, चैप्टर 6 इज नॉट कवर्ड. तो नाम लिख लीजिए जो नॉट कवर्ड है.
auditing and auditing in you know sorry auditing in automated environment, छोटा chapter है, is not covered. Okay, so ये होगा लाइव, हाँ ये लाइव होगा, जो जो चैप्टर्स नॉट कवर्ड है वो पूरा एकदम लाइव ऑनलाइन होगा. Chapter 7 and Chapter 8 are also covered through SS, audit sampling and audit procedure. तो Chapter 7 and 8 इसलिए गैप छोड़ा, बट सीरियली जा रहा हूँ इसलिए 6 पहले बोल दिया. Chapter 7 and 8 also covered Chapter 7 and 8 also covered through essay. Okay, and Chapter 6, Chapter 9, Chapter 10, Chapter 11, Chapter 13. सर तो ऐसे लिख दीजिए ना, Chapter 9 से 13. हाँ, Chapter 9 से 13 मैं नाम नहीं लिखूंगा इसलिए डायरेक्टली बोल दे रहा हूँ. Chapter 6 and Chapter 9 to 13, ये सारे चैप्टर्स, ये जो चैप्टर्स है ये हम लोग करेंगे थ्रू लाइव ऑनलाइन क्लासेस. यानी कि बहुत आसान चीज है. ये जो दो चैप्टर्स, मतलब ये जो 6 and 9 से 13 है, ये हम लोग लाइव ऑनलाइन करेंगे. सर इसके अलावा क्या लाइव ऑनलाइन करेंगे? इसके अलावा और कुछ लाइव ऑनलाइन करने के लायक है नहीं, क्योंकि सारा एसएस का क्लास आप लोग को दिया गया, मतलब एसए के जरिए 2 चैप्टर हो जाता है, वो आपको दिया गया. मैं ऑफ कोर्स कुछ लाइव सेशंस में बोल दूंगा वो चैप्टर्स का क्या क्या कंट्रोल है, और वो चैप्टर्स में अगर एक्स्ट्रा कुछ पोर्शंस है जो टेक्स्ट बुक में है बट ऐसे में नहीं है तो वो चीज, बट शायद ही रहेगा और शायद ही है और है हकीकत में थोड़ा सा. ठीक है ना? तो सर ये आप प्लान किए नंबर 3 में. हाँ, वी विल फिनिश ऑफ चैप्टर्स हियर एंड एसेज आर कवर्ड थ्रू डीटीएच. देखो पॉइंट नंबर 3 जो लिख के रखा उसको समझा दिया, पूरा ऑर्गेनाइज मैनर में समझा रहा हूँ, और ऑर्गेनाइज मैनर में इसको मिल जाएगा. क्लासेस सारा एसएस का दिया है, क्लासेस सारा एसएस का डीटीएच में आप लोग के पास है. जो नहीं होगा मैं हूँ, डोंट वरी. और जो ये 2 सेट ऑफ चैप्टर्स है 6 और 9 से 13 पूरा लाइव ऑनलाइन होगा. ठीक है? अच्छा सर ये तो समझ में आ गया. अच्छा अब ध्यान से सुनना. जूम सेशन जो है, जो लोग लॉ नहीं कर रहे हो, ऑडिट कर रहे हो, या लॉ का सेशन में प्रेजेंट नहीं थे, उन लोग के लिए बता रहा हूँ. जूम सेशंस जो है ये 40 मिनट्स का मेरा है, तो लगभग 2 घंटे का क्लास 3 से 5 हर फ्राइडे होगा. आज खाली एक्सेप्शन है, 4 से 5 लेंगे. ठीक है? 3 से 5 जो हर फ्राइडे होने वाला है. जूम सेशंस 3 सेशन आप लोग को मिलेगा. 40 मिनट्स इंटू 3 मतलब 120 मिनट्स. 40 मिनट्स का एक सेशन होता है. तो आज भी जैसे ये एक सेशन खत्म होगा 40 मिनट बाद, मैं नया सेशन भेज दूंगा, बट 5 बजे तक आज होगा. ठीक है? तो हर दिन वो चीज थोड़ा याद रखना पड़ेगा जब तक आई एम ट्राइंग टू चेंज इट टू अ प्रीमियम अकाउंट दिस सेशंस आल्सो. सो डोंट वरी, दैट आई विल डू. सो दैट इज द आइडिया. नाउ सर तो ये 2 क्लियर हो गया, जूम सेशन एंड रूटीन भी. पॉइंट 4 एंड 5 भी. पॉइंट 6 में मैं लिख दिया रिवीजन कराऊंगा, जो प्लान करता हूँ हर फाउंडेशन इंटर के लिए. रिवीजन कराऊंगा, अमेंडमेंट कराऊंगा, और वो क्लासेस भी ऑनलाइन ही कराऊंगा और यूट्यूब में चल जाएगा वो. डोंट वरी, बट वंस सिलेबस इज ओवर वी कैन डू दैट. इफ एनीवन जॉइंस क्लास नाउ, ये लास्ट क्लास भी बोला था लॉ के लिए भी, कोई अगर स्टूडेंट जैसे 1-2 स्टूडेंट है जो इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो उन लोग को, आप लोग का कोई दोस्त हो तो सेम, ठीक है, दे कैन ज्वाइन. बट ऑफ कोर्स अभी तक ऑडिट में कुछ नहीं हुआ है, तो ये जो चीज है उन लोग का क्लासेस टिल डन टिल नाउ एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ऑडिट में खाली याद करो तुम लोग जाने से पहले खाली
एक ही क्लास हुआ था, मतलब तुम लोग जाने से पहले नहीं, मतलब ये डेडलॉक आने से पहले खाली एक ही क्लास हुआ था ऑडिट का लाइव, क्योंकि ऑडिट का ज्यादातर क्लास डीटीएच में ही मिलने वाला था। ओके सर, अभी बुक्स का बारे में बताइए, जो एकदम मुश्किल वाला चीज है। बुक्स जो मेरा बेस्ट इन लाइन ऑडिट का ऐसे बुक्स है, गारंटीड वो बेस्ट इन लाइन है, फाइनल तक काम में आएगा। वो ऐसे बुक मैं इस बार विदाउट एनी इनसिक्योरिटी सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा, सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा, क्योंकि मैं स्टूडेंट लोग को उससे अलग नहीं रखना चाहता हूँ। ठीक है, आई विल डिस्ट्रीब्यूट PDF copy of the essay book. I cannot deprive you from such a good work. The essay book you can compare with any other essay book of final author or post final author, कोई भी, ठीक है, मिला के देख लेना, कॉम्फर्ट है। तो ऐसे बुक मैं दे दूंगा, और वही ऐसे बुक से क्लास में पढ़ाया गया है, और कुछ कुछ पीपीटी मैच भी करेगा, मेरा ही तो है दोनों, और कुछ जो पीपीटी भी है वो पहले ही मैं दे दिया था। तो आई विल गिव यू सॉफ्ट कॉपी ऑफ ऐसे बुक विच विल बेनिफिट यू। हार्ड कॉपी नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि पब्लिश करके फिर बीच में वो SSCI को लाना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉफ्ट कॉपी मैं दे दूंगा, मेरा प्रोप्राइटी, मेरा कॉपीराइट। ठीक है, और सॉफ्ट कॉपीज ऑफ द मेन बुक, मेरा मेन बुक भी है, वो भी मिल जाएगा, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों मिल जाएगा, और वही से पढ़ना है। ठीक है, किसी को छपवाना है छपवा लो अपने लिए, कमर्शियली बेचने के लिए खाली मत छपना। ठीक है, पीपीटीज ऑफ द क्लासेस बोलना नहीं पड़ेगा, मैं हर रोज रिलीजियसली देते रहता हूँ। ठीक है, किसी दिन भूल गया तो टोक देना सर पीपीटी। ठीक है, और ये रहा प्लान, मास्टर प्लान बोल सकते हो, जो लोग किया है क्लासेस, जैसे मेरे को पता है सृष्टि हैज डन इट, यू कैन आस्क हर हाउ कंफर्टेबल द ऐसे क्लासेस आर एंड टॉक टू हर। सो जो लोग एसएस किया है, मेरे को पता है एक दो जन किया है, ज्यादा जन को कैसे करेगा। तो द आइडिया इज द क्लासेस आर ओके, आई एम श्योर अबाउट इट, एंड जो लाइव क्लासेस है वो तो सामना सामनी होगा, जो प्रॉब्लम होगा मेरे को बताओगे। क्लियर है? तो सर आज क्या कराएंगे, आज मैं पहला क्लास का शॉर्ट में रिवीजन कराऊंगा, शॉर्ट में। वो रिवीजन कराने के बाद मैं चैप्टर 1 लेके थोड़ा बताऊंगा, क्योंकि चैप्टर 1 थोड़ा बहुत बोलना चाहिए, पहला चैप्टर होता है। फिर अपने नेक्स्ट वीक से, मैं अभी बता दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीक से जो कॉमन लॉ ऑडिट है, जिसके लिए और फास्ट हो जाएगा लॉ और ऑडिट का सिलेबस, नेक्स्ट वीक से वी विल स्टार्ट कॉमन लॉ ऑडिट, यानी कि चैप्टर 10 ऑफ लॉ एंड चैप्टर 10 ऑफ ऑडिट। चैप्टर 10 ऑफ लॉ एंड चैप्टर 10 ऑफ ऑडिट दोनों जो कॉमन है लॉ वालों के लिए और ऑडिट वालों के लिए, दोनों अगला फ्राइडे से चालू हो जाएगा। सर आज क्यों नहीं चालू होगा? क्योंकि आज टाइम कम है, अभी रिवीजन कराऊंगा क्लास 1 का, और उसके बाद थोड़ा सा चैप्टर 1 लेके बात करूंगा। ठीक है, और आज तो लॉ वाले है भी नहीं, सारे लॉ वाले रहना चाहिए ना, तो लॉ वालों का 3 क्लासेस होगा, ऑडिट वालों का 1 क्लास होगा कमिंग वीक से। सर लॉ वालों का 3 क्लासेस में, लॉ वालों का जो 3 क्लासेस है, वो 3 क्लासेस में 2 क्लास में दूसरा होगा, लॉ एक्सक्लूसिव लॉ वाला टॉपिक होगा, और ऑडिट के साथ वाला क्लास में ऑडिट वाला टॉपिक होगा, मतलब चैप्टर 10 हो। क्लियर है? लॉ फास्ट आगे बढ़ेगा। ओके सर, ऑल राइट सर। सिलेबस लगभग कब तक खत्म होगा? जल्दी हो जाएगा, ज्यादा देरी नहीं होगा। चैप्टर 10 इज द बिगेस्ट चैप्टर। चैप्टर 10 छोड़ के 9, 11, 12, 13 are not that big, big but not that big, and chapter 6 is not at all big. ठीक है, और जो मेन है वो ये है, तुम्हारे ऊपर निर्भर करेगा तुम कितना घर में पढ़ पाओगे। तुमको तो सारा क्लासेस एक साथ दे दिया, एक एक करके नहीं दे रहे। ठीक है, तो ये बड़ा है, देखना कितना सारा क्लासेस है, एक एक ऐसे को कैसे कैसे समझाया। ठीक है, सो दिस पोर्शन इज बिग, आई एग्री, आई हैव टॉट यू ह्यूज, बट वो तुमको घर में कवर करने के लिए तुम्हारे पास 24 घंटा है, तुम्हारे ऊपर है तुम सिलेबस कितना जल्दी खत्म करो। ओके, ऑल राइट, सो दैट इज द प्लान। किसी को कुछ प्लान में समझने में दिक्कत हुआ या कुछ डर लग रहा है, मेरे से बात कर सकते हो, मेरे को पूछ सकते हो अभी। आई विल एड्रेस इट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड यू नो idea, you can ask me. Okay,
I believe the plan is sound. Okay. All right. All right. We are starting with a quick revision of first audit class, because देखो first class और second class पे इतना फर्क आ गया कि पूछो ही मत। तो रिविजन कराना चाहिए सर। हाँ, मैं टाइम देके कराऊंगा। ठीक है, उसी के लिए आज बोला। ओके सर। सर पहला क्लास में आप ये पढ़ाए थे? हाँ बिल्कुल पढ़ाया था। ये मैं पहला दिन जो आप लोग को समझाया था, सीए इंटर में, सीए फाउंडेशन में ऑडिट सब्जेक्ट नहीं रहता है, बट एक सीए जो क्वालिफाइड होते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, उनका मेन काम होता है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। और क्या है ये ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, आधा लोगों को नहीं पता। सर आधा क्या, आप छोड़िए, नॉन सीए लोग को तो पता ही नहीं है। सीए लोग को भी, जो लोग एकदम स्टूडेंट लेवल में है, इंटर लेवल में कुछ लोग ट्यूशन नहीं लेते, उन लोग को भी ठीक से नहीं पता। मैं बोलते रहता हूँ। कारण क्या है? बहुत लोग सोचते हैं ऑडिट मतलब सीआईडी के तरह, नहीं। ऑडिट मतलब बहुत लोग सोचते हैं कि चेक करेगा आके। चेक करना तो है, बट क्या ऑब्जेक्ट है ऑडिट का? टू गिव एन ओपिनियन। ओपिनियन देना काम होता है ऑडिटर का, कुछ करना नहीं होता है, खाली ओपिनियन देना काम होता है। हाँ, अब ओपिनियन देने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, वो बात अलग है। बट मेन जो फंक्शन है, मेन जो काम है, मेन जो परफॉर्मेंस है, मेन जो उसका टास्क है of an auditor is to give opinion on the FS. What is an FS? Financial statements. Whether the FS, yani ke whether the financial statements are showing true and fair view, and whether they are free from material misstatement. तो देखो पहला स्लाइड में, ये मैं क्लास में भी पढ़ाया था मेरे ख्याल से, ठीक है। An independent examination of books. It is an independent, बहुत इंपॉर्टेंट है। चेकर मेकर कॉन्सेप्ट, मैं पहला क्लास में बहुत अच्छे से ये सब बोला था। चेकर मेकर कॉन्सेप्ट मतलब एग्जाम में तुम खुद का एग्जाम खुद लेके क्या खुद ही को खुद मार्क्स देते हो, और ये क्यों संभव नहीं है? बिकॉज यहाँ पे इंडिपेंडेंस नहीं रहेगा, जाहिर है आप बायस्ड रहेंगे। चेकर और मेकर हमेशा अलग इंसान होना चाहिए, ये एक इंटरनल कंट्रोल है। इंटरनल कंट्रोल क्या है अभी नहीं बता रहा हूं, बट मैं बोल रहा हूं, ठीक है। और ऑडिट में भी वही इंडिपेंडेंस रहना चाहिए, तभी ऑडिट का ओपिनियन फेयर होगा। To obtain a fair opinion on the financial statements, the audit work shall be done by an independent and qualified person. That is why these are all small terms, but they carry so much of weight. If you miss a term, if you miss a technical word, that is why marks are deducted. ठीक है। एक चीज क्यों इंपॉर्टेंट होता है वो सोचना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक शब्द का क्या इंप्लीकेशन है वो सोचना इंपॉर्टेंट है, ना कि एग्जाम में मार्क्स मिलेगा मैं रट लेता हूं, ठीक है। तो सर ऑडिट क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। सर कहां पे लिखा है? देखो पीपीटी में लिखा है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन of what? Of books of accounts. To give what? To opine on the FS. ये और एक टेक्निकल टर्म। देखो एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, एक एफएस है। बहुत लोग को ये दोनों का फर्क नहीं समझता है, या समझने से भी सोचता नहीं है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज द अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स थ्रू विच एफएस इज ड्राफ्टेड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, दीज 5 आर द एफएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डेफिनेशन इज गिवन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड सेक्शन 129 भी उसके बारे में बोलता है। ये दो सेक्शन बोलता है पूरा कंपनीज, अक्खा कंपनीज एक्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये 5 चीज है, यही चीज बोला जाता है। हर कंपनी को, यानी कि कंपनी का मैनेजमेंट को, अल्टीमेटली हर कंपनी को ईयर एंड में, फाइनेंशियल ईयर एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करना होता है। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया जाता है, उसका अंडरलाइन चीफ रिकॉर्ड्स होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और ऑडिटर अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो दे
क्या दे सर, ओपिनियन, तो उसको एग्जामिन करना पड़ेगा किसको, द अंडरलाइन स्टेटमेंट्स विच आर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसीलिए तो ऑडिट होता है। फिर वो रिपोर्ट दे दिया, ऑडिट रिपोर्ट में अपना ओपिनियन पेश कर दिया, और वो इंडिपेंडेंट होगा तभी तो वो रिपोर्ट भी सही होगा। और वो ओपिनियन दो चीज पे देता है, वो बोलता है वेदर द एफएस आर फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट्स, नहीं मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। मिसस्टेटमेंट्स तो हो ही सकता है छोटा मोटा, एक दो मिसस्टेटमेंट हो ही सकता है। रिलायंस के लिए, रिलायंस जैसा कंपनी के लिए, जो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज है, रिलायंस जैसा कंपनी के लिए लाखों का फिगर भी मटेरियल नहीं भी हो सकता है। सो मटेरियलिटी इज अ वेरी बिग रिलेटिव कॉन्सेप्ट। बट वही चीज अगर एक छोटा मोटा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, छोटा मोटा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसे एसएससीआई, छोटा मोटा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या फिर कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तुम सोच सकते हो, तुम लोग सोच पाओगे इसलिए तो बोल रहा हूं, तो तुम लोग जो सोच सकते हो वैसा कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, छोटा फैम बेस टाइप, वैसा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लाख का फिगर बहुत मैटर करेगा, मारा मारी हो जाएगा लाखों का फिगर के लिए। सो लाख, materiality is always what, materiality is always a relative concept, and बोला कि वही रिलेटिवली देखना पड़ेगा, एक चीज मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि नहीं, और मिसस्टेटमेंट मटेरियल अगर नहीं रहा तो फिर ये ओपिनियन अच्छा ओपिनियन हो। एंड वेदर दे आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू शब्द को लेके भी मैं बहुत सारा एनालाइज किया था पहला क्लास में, याद होगा तुम लोग को। वापस ऑडिट चालू कर रहे हो तो ऑडिट का मोड में आ जाओ, ऑडिट का मोड एंड लॉ का मोड अलग होना चाहिए। ओके, ट्रू एंड फेयर शब्द को मैं समझाया था ऐसा बोल के, ट्रू एंड फेयर का एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है, एग्जैक्ट इनवर्स होता है एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू का एग्जैक्ट इनवर्स लॉजिकल इज एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट, एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट। मेरे को बताना एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट है कि नहीं, ये बताना ऑडिटर का क्यों काम नहीं हो सकता है। मैं बोला था ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट, ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट, एक ऑडिटर एक, ओ राइट थैंक यू, मैं खुद ही भूल गया। कोई मेरे को बोला सर कनेक्ट टू चार्जर, वो दिखाई दे रहा है, मैं खुद देखा नहीं पढ़ाते पढ़ाते, थैंक्स। ओके, अचानक ऑफ हो जाता। ओके ऑल राइट, एक ऑडिटर जो है, एक ऑडिटर का धर्म होता है कि वो ओपिनियन दे। अब ये जो ओपिनियन देगा ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। ट्रू का मतलब सच, फेयर मतलब फेयर, अच्छा एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट शब्द यूज नहीं किया गया, नहीं तो ऑडिटर बेचारा फंस जाएगा। मेरा बहुत सारा क्लाइंट्स है, छोटा मोटा एकदम, पढ़ाता हूँ तो प्रैक्टिस कैसे करूंगा, छोटा मोटा क्लाइंट्स है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जैसा। तो जितना भी क्लाइंट्स है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेरा ही साइन जाता है, डिजिटल सिग्नेचर हो एक्चुअल सिग्नेचर हो, मेरा पार्टनर एंड मेरा। तो ये जो कभी कभार हर चीज तो उतना इन डेप्थ नहीं देख पाते, तो मेरा ओपिनियन अगर गलत हो गया, एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट नहीं रहा, एक यहाँ से वहां गलती हो गया, सी इंस्टीट्यूट बुलाएगा, पढ़ाने नहीं तब क्लास लेने बुलाएगा, मतलब मेरा क्लास लिया जाएगा, बोला जाएगा आप क्वालिफाइड हो, ऑडिट पढ़ाते हो और इतना कुछ ट्रेनिंग देते हो सीए इंस्टीट्यूट में, और आप ऐसा गलती कैसे कर दी, बोलेगा पूछेगा, कोई किसी को नहीं छोड़ता है। तो द आइडिया इज तब मैं अकाउंटेबल हो जाऊंगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा कुछ भी। और ऐसा सिर्फ मैं नहीं, कोई भी प्रैक्टिशनर के साथ हो सकता है, कोई भी प्रैक्टिसिंग सीए के साथ हो सकता है। एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट नहीं हो सकता है क्लाइंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा 100%।
तो हर बार ऑडिटर के ऊपर आरोप लगाया जाएगा और ऑडिटर को पॉइंट आउट किया जाएगा। इसीलिए ऑडिटर का टास्क है ओपिनियन में ये देना कि वेदर एफएसआर एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट नहीं, ट्रू एंड फेयर। ऑडिटर गिव्स एन assurance which is reasonable or absolute. We spoke about it on the first class. Reasonable assurance. Auditor gives an reasonable assurance. और reasonable assurance का मतलब मैं समझाया था 80% accuracy। मतलब 80% एंड अबव एक्यूरेसी होने से ही हो जाएगा, उसको 100% एक्यूरेसी नहीं देखना पड़ेगा। 100% एक्यूरेसी का मतलब होता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस। एब्सोल्यूट एश्योरेंस बेचारा कहां से रहेगा, ला ही नहीं पाएगा ऑडिट वर्क में। सारा साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहे, हर एक चीज मिस्टेक एरर फ्री हुआ है कि नहीं, वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस कहां से लाएगा। हालांकि मैं बोला था इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट, ये भी है। ऑडिट का कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस है। मैनेजमेंट जो फिगर्स बनाया है, अकाउंट्स बनाना किसका काम है, ऑडिटर का या मैनेजमेंट का? मैनेजमेंट का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके प्रेजेंट करना किसका काम है, मैनेजमेंट का, ऑडिटर का? मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट जो बनाया है, कुछ प्रोविजंस एंड एस्टिमेट्स भी बनाता है ना। प्रोविजंस और एस्टिमेट्स खुद ही एक्यूरेट नहीं होते हैं, कैसे होगा? आज अगर मैं बोलता हूँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, आज अगर मैं बोलता हूँ प्रोविजन फॉर bad debts, these are estimates or these are accurate figures? Estimates. एंड अगर अकाउंट्स ही खुद एस्टिमेटेड है तो ऑडिटर कहां से एक्यूरेट और एग्जैक्ट फिगर्स लाएगा? बात समझे? तो ऑडिटर का काम हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस देना होता है, ना कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस, ना कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस। ओके, सो एन ऑडिटर ओनली कैन गिव रीजनेबल एश्योरेंस एंड हेंस उसका काम है ट्रू एंड फेयर व्यू देना, ओपिनियन देना वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू। देखो पहला स्लाइड से सारा टेक्निकल वर्ड्स अभी लग रहे हैं ना। अब कोई नॉर्मल बीकॉम जो कर रहे हैं, सिर्फ सीए नहीं कर रहे हो, उसको क्या फर्क पड़ेगा? वो बोलेगा सर मैं ये अपना भाषा में लिख दूं, लिख दो बेटा, क्या समझ में आएगा जो पढ़ेगा। इसीलिए टेक्निकल शब्दों का कितना मायने होता है। ऑडिटर gives what is an audit? Independent examination, number 1. Number 2, of what? Books of accounts. Number 2, of whom? Of an entity. So that auditor क्या करेगा? Can give a opinion, जो auditor का काम है। Whether opinion on what? Opinion on financial statement. Whether the FS are free from material misstatement. Material word miss हो जाने से सोचो क्या हो जाएगा, ठीक है? एंड वेदर दे आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू। क्लियर है? सबको याद आया? ठीक है, ओके। व्हाई इज ऑडिट रिक्वायर्ड? मैं ये बोला था पहला क्लास में, पूरा स्लाइड ही बोल दिया था। तो बोलो ऑडिट क्यों जरूरी है, ऑडिट का जरूरत क्या होता है? व्हाई इज ऑडिट रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डे? बिकॉज मैं अभी बोला हर कंपनी को एज पर कंपनीज एक्ट 2013, 1956 वाला एक्ट में भी वही रिक्वायरमेंट था। हर कंपनी को ईयर एंड में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर जब खत्म हो गया, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के पेश करना पड़ता है, जिसका इंग्लिश होता है प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये पेश करने का आवश्यकता है कंपनी को, और कंपनी के लिए ये कौन करता है? कंपनी का मैनेजमेंट, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के किसको पेश किया जाता है? इन्वेस्टर लोग को, शेयर होल्डर लोग को, जो मेंबर्स ऑफ द कंपनी को। कहां पे? एजीएम में पढ़े हो सेक्शन 96, बिजनेसेस कंडक्टेड इन एन एजीएम में एक था ना, एडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स। और एडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स यही तो है। अभी ये अकाउंट्स जब पेश होगा, ये अकाउंट्स सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, वो कैसे परखेगा? जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको थोड़ी ना पता है ये। तो वो कौन सा अकाउंट्स में भरोसा कर पाएगा, ऑडिटेड या अनऑडिटेड? ऑडिटेड। तभी तो ऑडिट का रिक्वायरमेंट है, और ऑडिट कंपलसरी है। एंड एवरी कंपनी स्टैट्यूटरीली आल्सो नीड्स टू अपॉइंट एन ऑडिटर हु मस्ट बी अ सीए। इसीलिए सीए लोग का डिमांड है सर, अभी घटेगा।
बहुत कंपनीज बैंकरप्ट होने वाला है, ठीक है। ओके सर, इकोनॉमी के बारे में बाद में बात करेंगे, बहुत सारा चीज है इकोनॉमी के बारे में सोचने लायक। now the idea is why is audit required? Audit is required for the reason I said, for the trustworthiness of the FS. Who is the FS? What is the FS? Financial statements. देखो पढ़ो क्या लिखा। In public companies, money invested by public can be misutilized or misapplied. हो ही सकता है ना, ठीक से अप्लाई, रोज वैली वगैरह में मिसयूटिलाइज हुआ ना, मिस अप्लाई हुआ है ना चिट फंड्स में, by the management who run the company with the shareholders. shareholders से पैसा उठा लिया, मैनेजमेंट लेके भाग गया। Hence it is important to have an examination of the FS which are prepared and presented, showing the true and fair view and whether they are free from material mistake. फिर मैं बोला था टाइप्स ऑफ ऑडिट क्या क्या हो सकते हैं, कितना तरह का ऑडिट हो सकता है दुनिया में। तुम लोग नाम सुनते हो ये सबका, बट जानना चाहिए। मैं बोला था कि स्टैट ऑडिट सबसे कॉमन ऑडिट, जिसको हम लोग ऑडिट अभी बोल रहे थे, जिसका एग्जांपल मैं ले रहा था, वो उसको उस वैसा ऑडिट को बोला जाता है स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है? लीगल। और स्टैट्यूटरी ऑडिट हर एक कंपनी को स्टैट्यूटरीली लीगली कंपल्सरीली करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट कह दिया। वही चैप्टर 10 में पढ़ेंगे अगला क्लास में, क्या बोला ऑडिट को लेके। ऑडिट ऑफ कंपनीज इज द नेम ऑफ द चैप्टर and company audit is the name of the chapter. Okay, and वही section 139 से 148 is the chapter 10 of laws, last chapter of Companies Act in inter syllabus. Last chapter of Companies Act as it is chapter 29 which is part of final syllabus. Okay sir, अब बताइए स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड फाइनेंशियल ऑडिट इसका नाम है। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट तो नाम फाइनेंशियल ऑडिट, गलत क्या है? ठीक है, इट इज ईयरली ऑडिट। हाँ, और कौन करता है? इंडिपेंडेंट ऑडिटर, जो कि क्वालिफाइड क्या है? सीए, सीएस, सीए में सिर्फ सीए। ही शैल बी अ प्रैक्टिसिंग सीए, यानी कि सीए नॉट इन प्रैक्टिस, जो इंडस्ट्री में नौकरी कर रहे हैं वो नहीं कर पाएगा। सर आप जब इंडस्ट्री में नौकरी कर रहे थे, आप ऑडिट कर रहे थे? नहीं। कैसे करूंगा? सीओपी नहीं लिया था, ऑनेस्ट इंसान हूं, नौकरी छोड़ा सीओपी लिया। ओके सर अभी बताइए इंटरनल ऑडिट क्या होता है? इंटरनल ऑडिट हो गया कंपनी का मैनेजमेंट खुद ही ऑडिट करवा रहा है सारा साल, एक डिपार्टमेंट बना दिया ऑडिट का। इंटरनल ऑडिट जाके स्पिक एंड स्पैन रहे सारा चीज, जाके स्टैट ऑडिटर जब आएगा तब झमेला ना फेस करना पड़े। तो सारा साल अगर ऑडिट करते ही रहे तो स्टैट ऑडिटर आके देखेगा सब ठीक ही है। इंटरनल ऑडिटर कौन बन सकता है? सीए तो बन पाएगा, ऑफ कोर्स सीए ही चॉइस रहता है इंडस्ट्री में, रियल लाइफ अगर बोलूं तो। सीएस सीए में कोई भी स्ट्रीम का हो सकता है इंटरनल ऑडिटर। हाँ, कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है इंटरनल ऑडिटर को क्वालिफाइड सीए होना पड़ेगा या सीए में होना पड़ेगा या कुछ होना पड़ेगा। बीकॉम पास हो सकता है। हाँ, कुछ इंटरनल ऑडिटर है कुछ कंपनीज में, वो लोग सिर्फ बीकॉम है और बहुत ही तरक्की कर गया। इनफैक्ट नॉन बीकॉम भी इंटरनल ऑडिट, अल्टीमेटली फील्ड से भी एक्सपीरियंस, तजुर्बा मिलने के बाद कोई एक्सपर्टाइज ग्रो कर सकता है ना। वही सर, टैक्स ऑडिट यूजुअली सीए लोग ही करता है, टैक्स में एक्सपर्ट है ना, पढ़ रहे हो ना टैक्स। ओके, कॉस्ट ऑडिट और एक तरह का ऑडिट है, सीए लोग नहीं कर पाएगा, सीए में, ओनली द सीए में। अब मैं बता दूं सीएमए लोग के लिए, मैं बोला नहीं सिलेबस डिस्कशन, आप लोग का सीएमए का पूरा सिलेबस कवर्ड हो जाएगा यही पे। आप लोग का कुछ चैप्टर नहीं है, वो मैं बोल दूंगा, जो लाइव ऑनलाइन क्लास में नहीं है। Before I continue with this slide, I am sharing with you another ID, less than 1 minute दिख रहा है, 40 minutes का जो सेशन है वो आईडी में काम चल जाएगा 5 बजे तक। ठीक है, मैं भेज रहा हूँ ग्रुप से, वापस लॉगिन करना। थैंक यू।